آج کی یہ پریس کانفرنس یوم القدس منانے کے سلسلے میں ہے۔ فلسطین کے مظلومین کی حمایت میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نظریات ہمارے لیے بہترین لاہ عمل ہیں۔ القدس مسلکی مسئلہ نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کا باہمی مسئلہ ہے۔ کشمیر و فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالی کے بدترین واقعات رقم کیے جا رہے ہیں، جن کے خلاف اقوام متحدہ اقوام عالم کو انسانی اور اخلاقی بنیادوں پر آواز بلند کرنی چاہیے۔ ظالموں کی مخالفت اور مظلوموں کی حمایت ایک شرعی تقاضا ہے۔ امریکہ، بھارت اور اسرائیل دور عصر کے سب سے بڑے ظالم اور غاصب ہیں۔ ان کے خلاف امت محمدیہ بھرپور انداز میں احتجاج جاری رکھے گی۔ القدس پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کا غاصبانہ تسلط کے خاتمے کا وقت انشاءاللہ بہت قریب آ گیا ہے۔ القدس کی آزادی اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ فلسطین کی وہ قوم جو کل تک اسرائیلی ٹینکوں کا مقابلہ پتھروں سے کرتی تھی، آج جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ عوامی مزاحمت نے اسرائیل کو عملی اور فکری طور پر شکست فاش سے دوچار کیا ہے۔ امریکہ کے کندھے پر سوار ہو کر اسرائیل زیادہ دیر تک اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ سکے گا۔ فلسطین، اس کی ترقی نے اسرائیل اور اس کے حواریوں کو خوفزدہ کر رکھا ہے۔ اپنے وسعت پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے دیکھے جانے والے گریٹر اسرائیل کے خواب آج چکنا چور ہو چکے ہیں، اور صہیونی اور غاصب حصے پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے اسرائیل بکھلاہٹ کا شکار ہے اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اسرائیل کی اس ناکامی کا سارا کریڈٹ امام خمینی کو جاتا ہے، جنہوں نے انقلاب ایران کے بعد القدس کے مسئلے کو زندہ رکھنے کے لیے بھرپور آواز بلند کی۔ انقلاب ایران کے بعد امام خمینی نے جمعۃ الوداع کے موقع پر پوری دنیا کے اندر یوم القدس منانے کا اعلان کیا۔ اس وقت جب عالمی قوتیں اور اسرائیل کو ایک اٹل حقیقت منوانے پر تلی ہوئی تھی، انہوں نے کہا وہ عالمی استکباری قوتیں جو فلسطینیوں سے ان کا آبائی علاقہ چھیننا چاہتی ہیں، آج ہمارے وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام کو بھی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ امریکہ پاکستان کا بدترین دشمن ہے اور اس کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ دہشت گردوں کے ذریعے وطن عزیز کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس قوم نے پہلے ہی بہت نقصان اٹھایا ہے۔ ہمارا ملک مزید کسی آزمائش کا متحمل نہیں ہے۔ وطن عزیز کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بیرونی مداخلت کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ اسی طرح کشمیر، افغانستان اور جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ اور OIC سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کشمیر، فلسطین، افغانستان، ہندوستان اور دیگر علاقوں میں مسلمانوں سے ہونے والی زیادتیوں کا نوٹس لیں اور ان کے بنیادی حقوق کے حصول کو یقینی بنائیں۔ اس قسم کے حساس معاملات میں عالمی سامراج کی مداخلت پر ہماری خاموشی دنیا کے
तमाम मुसलमानों के लिए मज़ीद संगीन ख़तरात का बायस बन सकती है। इसके साथ साथ कराची में चीनी असातिज़ा के ऊपर होने वाले ख़ुदकश बमबार के हमले से उसकी भी मज़म्मत करते हैं और हम ये ऐलान करते हैं कि दुनिया में जहाँ भी जुल्म होगा हम उससे इजहार नफ़रत करते हैं और मज़लूमीन की हमायत का ऐलान करते हैं। अहले वतन के लिए ये मेरे अल्फाज हैं कि 27 रमज़ानुल मुबारक को नज़ूल कुरान की शब को अल्लाह ने ये पाकिस्तान में इनायत किया था। पाकिस्तान वजूद में आया था 27 रमज़ानुल मुबारक को, और बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में सारे मकातब जुमला मसालक तबक़ात मुत्तहिद थे, तो पाकिस्तान का क़याम, पाकिस्तान का असूल मुमकिन हुआ अगर उसी जज्बे के साथ हम फिर मुत्तहिद हो जाएँ और इत्तेहाद, कौमी इत्तेहाद से हम अपना कश्मीर भी आज़ाद करवा सकते हैं भारत के शिकंजा जुल्म से, और फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस को भी आज़ाद करवा सकते हैं। कौमी इत्तेहाद ही इस्तेकाम पाकिस्तान की ज़मानत है। दुश्मन हमें तबक़ात में मसालक में बाँट के हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ज़रूरत है कि पाकिस्तान के लिए हम सब मुत्तहिद हो जाएं। हमारी अपील भी है और ऐद भी करें इस दिन को, क्योंकि पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ था 27 रमज़ानुल मुबारक को, तो हमें ऐद करना चाहिए कि हम पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए कौमी इत्तेहाद का मुज़ाहरा करेंगे। जिस तरह हमें यहाँ अपने मुल्क की खातिर तमाम मसाले को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, इसी तरह ही आलम इस्लाम के इस्तेकाम के लिए और आलम इस्लाम की मजबूती के लिए मैं कहूँगा कि जितने इस्लामी ममालिक हैं उनको एक पेज पे हो जाना चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा को मैं नोटिस दिलाना चाहता हूँ कि वो जो जुल्म हो रहे हैं, फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो या जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी तंजीमें करवा रही हैं, मैं अक़वाम मुत्तहिदा से ये अपील करता हूँ कि वो इन चीज़ों का नोटिस ले ताकि अपनी ज़िम्मेवारी वो पूरी कर सके। एहतजाजी काफ़िला मजलिस वहदत मुस्लिमीन की तरफ से इकट्ठा हुआ है। हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब नकवी के, जिन्होंने बैनुल मुस्लिमीन इत्तेहाद के लिए हम सब को यहाँ मदऊ किया, और हम इनके हर अल्फाज की तायीद करते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल और नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े से सर से पाँव तक हर चीज़ वतन अज़ीम के लिए और इस्लाम के लिए कुर्बान करने के लिए कल भी हाज़िर थे, आज भी हाज़िर हैं। पाकिस्तान की बुनियादों में हमारे आबा व अजदाद के खून जो है वो बहे हुए हैं। इसकी ताबीर व तरक्की के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारी माँओं ने, हमारी बहनों ने 27 रमज़ानुल मुबारक के दिन जब काफ़िले लुटे पुटे पाकिस्तान के क़याम के वक़्त खड़े थे तो किसी की माँ बिछड़ गई, किसी का भाई बिछड़ गया। वही आज बैतुल मुक़द्दस के अंदर है, फ़लस्तीन के अंदर है, जहाँ पे नहत्ते मुसलमानों के ऊपर इसराइली जुल्म सितम बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं। तो हम आलम इस्लाम के अंदर एक फरियाद करते हैं, आओ आज भी वक़्त है, उम्मत मुसलमान इकट्ठे हो जाओ और फिर कुफर की जितनी भी बुनियादें हैं उनको खोखला कर दो। अमेरिका और इसराइल को पता चल जाए मुसलमान कल भी एक था, आज भी एक है, क्योंकि खुदा भी एक है, रसूल भी एक है, कुरान भी एक है, इस्लाम भी एक है। वाखिर दावाना आज पाकिस्तान को भी इसराइल की जैसी सूनी ताकतें पाकिस्तान में अपनी मदाखलत को बरकरार रखे हुए हैं। पाकिस्तान को फ़लस्तीन बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान में कश्मीर जैसे हालात को पैदा करना चाहते हैं। तो हम अमेरिकी मदाखलत की और इसराइल की फ़लस्तीन पर मुसल्लत जो उनकी ताकत है उसका भरपूर एहतजाज करते हैं। जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो गालबन हम ठीक कहते हैं कि जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं एक शेर कहूँगा, इस पर मैं काम भी कर दूँगा। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। वाह 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 वाह। हम बात करते हैं अमेरिका की और बात करते हैं इसराइल की।
और फिर हम भागते हैं अमेरिका की तरफ और भागते हैं इसराइल की तरफ। ये भी हमारे लिए नापसंदीदा काम है। जो अमेरिका से आता है हम उसके भी पीछे भागते हैं। क्यों हम अपने आप पर यकीन क्यों नहीं रखते, अपनी मुसलमानी पर, अपने ईमान पर कायम क्यों नहीं रहते? हमको अपने ईमान पर भी कायम रहना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब का कि उन्होंने ये प्रश्न रखी और हम मजम्मत करते हैं, बेहद मजम्मत करते हैं। जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान पर जुल्म हो रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं।